پلیز چینل کو لازمی سپورٹ کیجیے اور لازمی شیئر کیجیے تاکہ چینل کو گرو ملے۔ پلیز آپ کا انتہائی کم رسپانس ہے، پلیز ایپی کو پورا دیکھیں اور آگے بھی ریکمنڈ کریں پلیز۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ ساجد حتمی انداز میں بولتا اس کے پاس بیٹھ گیا جو کل سے بھوکا پیاسا بیڈ پر گرا ہوا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی بے بسی پر افسوس ہو رہا تھا کیونکہ کمرے سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا تو فون نامی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ میں انکار کرتا ہوں، وہ نقاہت زدہ نفی میں سر ہلاتا انکار کر گیا۔ تمہاری ماں پوچھ رہی تھی آج کے شان گھر نہیں آیا؟ میں نے کہا پارٹی سے تو گھر کے لیے نکلا تھا، آگے کیا پتہ نہیں۔ وہ کاٹن لیے اس کے زخم صاف کرنے آگے بڑھا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا نفرت سے منہ پھیر گیا۔ اسے اس شخص سے شدید گھن محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آج رات کیا ہوگا؟ خالی خاموش گھر میں معمولی سی جبکلش بھری لڑائی ہوگی اور تمہاری ماں کے جسم پر بے تحاشا تشدد کی بنا پر نلاہٹ پڑے گی۔ اس کے بعد اشان نفی میں سر ہلاتا پھٹی نگاہوں سے ان کو دیکھتا جا رہا تھا جو کینچی سے پٹی کاٹتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد تمہاری ماں کو پہلی طلاق ہوگی، 10 سال بعد وہ ایک بار پھر طلاق کا تمغہ اپنے ماتھے پر سجائے گی۔ اس کی دھمکی اشان کی رگ رگ میں زہر بھر کر پھیلی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اپنے پاس بیٹھے ساجد کو دیکھتا ہے جس کو 10 سال وہ اپنا باپ سمجھتا آیا تھا، مگر وہ کیا سے کیا نکلا تھا۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ ان کو طلاق نہیں دیں گے؟ وہ نفی میں سر ہلاتا التجا کرنے لگا جبکہ ساجد ہنستا ہوا کینچی کو یکدم اس کے بازو پر مار گیا۔ اشان درد کی شدت سے چلاتا اپنا بازو تھام گیا جہاں سے ہلکی سی خون کی بوند ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر تمہاری ماں مار کھائے گی اور دوسری طلاق، پھر تیسرے دن وہ اتنی پاگل ہو جائے گی کہ خودکشی کرنا شروع کر دے گی اور شاید وہ کامیاب بھی ہو جائے۔ تو اشان میری جان، میرے پیارے بیٹے، کیا تم اس چیز کو قبول کرو گے کہ تمہاری ماں تمہاری وجہ سے بھیانک موت کے منہ میں چلی جائے، تمہارا واحد قیمتی رشتہ تمہاری وجہ سے مر جائے؟ کیا تم ایک غیر لڑکی کے لیے اپنی ماں کی قربانی دینا چاہتے ہو؟ وہ اس کو دیکھتا آہستہ آہستہ اس کے دل میں خوف ڈالتا جا رہا تھا۔ اشان اس سے پہلے بھی بہت ڈرتا تھا، اب اس کی ایسی باتیں سن کر مزید جان ہتھیلی پر آ جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بن باپ کا بچہ حساس طبیعت کا حامل تھا۔ اس کی ماں اسے ہمیشہ سے ڈراتی آئی تھی کہ وہ دونوں اس کے محتاج ہیں اور اس کی ماں طلاق سے بہت زیادہ خوف کھاتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کے دل و دماغ میں بھی یہی خوف ڈال دیا تھا کہ تانیہ کو طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے پہلی طلاق کے بعد بہت سی پریشانیاں دیکھی تھیں، وہ دوسری بات ایسی بدنامی نہیں دیکھ سکتی تھیں اور اب تو ان کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی۔ کیا تم ایک پرائی لڑکی کے لیے اپنی ماں کو پاگل ہوتا دیکھو گے؟ اور پھر تم کوئی گناہ تو نہیں کرو گے؟ تمہارا نکاح تو ہو رہا ہے نا؟ اس سے وہ نرمی سے کہتا اس کے بازو پر باندھنے لگا پٹی جبکہ اشان کی آنکھوں سے آنسو دھیرے دھیرے بہنے لگے۔ انسان کی بے بسی اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا ڈیڈ، پلیز پلیز مجھ پر دست کھائیں، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، خدا را مجھے مجبور مت کریں۔ وہ التجا کرتا کوئی چھوٹا بچہ ہی لگ رہا تھا مگر سامنے اس کا سگا باپ نہیں تھا جو کہ ترس کھا لیتا۔ اسے اپنے سوتیلے بیٹے سے ہر قیمت پر نفع حاصل کرنا تھا، اسے ہر قیمت پر امین ترین شخص بننا تھا۔ اس نے اتنا عرصہ اس کو پالا تھا، پیسہ لگایا تھا، وہ بیٹھ کر اس سے پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ تمہیں کرنا ہوگا میرے پیارے بیٹے، کیونکہ میں مفت کا مال تم پر قربان نہیں کرنے والا۔ اتنا عرصہ تمہیں کھلایا پلایا تھا تو اب مجھے بھی تمہارا کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ مسکرا کر بولتا اس کے ماتھے سے بالوں کو پکڑ کر اسے اپنے سامنے جھکاتا ہے اور ساتھ ہی زخم صاف کرتے سر پر پٹی کرنے لگا۔ یہ گناہ ہے تو ثواب والا کام کون سا ہے؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ اگر تم دیری کرو گے نا میرے پیارے بیٹے اشان، تو تم نکاح کو بھول جانا، اس لڑکی سے پہلے تمہاری سمگلنگ ہو جائے گی۔ یقین کرو تمہاری ایج کے حسین لڑکے مہنگے داموں خریدے جاتے ہیں۔ وہ اس کے پٹی کر کے اسے بیڈ پر پٹکتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں اور تمہاری ماں کو تباہ و برباد کر دوں گا اشان، وہ دھمکی دیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اشان تکیے پر مکے رسید کرتا روتا چلا گیا۔ اسے ان مشکل وقت میں کہیں بھی کوئی سیدھا رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کام کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا جس کو کرنے کے بعد وہ خود سے نگاہ ملانے لائق نہیں رہنا تھا۔ یہ کون ہے؟ وہ شدید حیران ہوتی آگے بڑھنے لگی۔ مہک دوسری جانب نہیں جانا، دیر از اے ڈینجر، اس کی پروفیسر نے اس کو آواز دی۔ میم وہاں کچھ لوگ ہیں۔ اس نے اشارہ کرتے ان کو بتانے کی کوشش کی مگر پروفیسر کو اس کی بات نہیں سنی کیونکہ وہ اپنی ساتھی پروفیسر کے ساتھ بات کرنے لگی تھی۔ کہاں گئی؟ وہ مزید آگے بڑھی۔ بلند و بالا پہاڑوں کے نیچے اتنی زیادہ گہرائی تھی کہ وہ ایک نظر نیچے دیکھ کر فوری پیچھے ہوئی کیونکہ وہ اونچائی سے نیچے دیکھنے پر چکر آ گیا تھا مگر اس کا دماغ ابھی تک سامنے اٹکا ہوا تھا جہاں کچھ مرد بھاری اسلحہ پکڑے کسی کو بے دردی سے مارتے ہوئے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ وہیں تو تھے۔ وہ مزید حیران ہوتی دوبارہ نیچے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف برف ہاتھ میں پکڑ کر انجوائے کرتے شاہویر کی اچانک اس پر نگاہ گئی تو آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ کنارے پہ کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی۔ اگر تھوڑا سا پاؤں پھسلتا تو وہ نیچے جاتی اور بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ مہک یکدم درخت سے نیچے گرتی برفانی گلہری کو دیکھ کر ڈر گئی اور پاؤں پھسلا۔ مہک! شاہویر سب کچھ چھوڑے اس کی جانب بھاگا۔ اس کی جان ہتھیلی پر آ گئی جبکہ اس کا کوٹ ایک لکڑی میں پھنس گیا تھا جس وجہ سے وہ برف کی پھسلن پر اٹکی ہوئی تھی۔
दूसरी तरफ इर्द गिर्द एंजॉय करते लोगों की जान पर बनाई। वो सब मुंह पर हाथ रखे महक को ऊपर खींचने की कोशिश करते शाहवीर को देख रहे थे। शाहवीर भी केयरफुल। टूर इंस्ट्रक्टर उसके पास आया। बाकी सबको पीछे रहने की गुजारिश की जा रही थी ताकि बर्फ नीचे की जानब ना रगड़ खाए। महक मुसलसल डर की शिद्दत से चिल्लाती जा रही थी। हाथ दो महक, शाहवीर गुस्से से चिल्लाया। तब उसको हाथ देने की कोशिश करने लगी। पीछे से इंस्ट्रक्टर ने शाहवीर को थामा क्योंकि फिसलन इतनी ज्यादा थी कि पाँव रखते ही बर्फ टूट कर नीचे जाती। नो मम, मैं गिर जाऊंगी, वो रोती हुई ऊपर निगाहें उठाती है और उसके आंसुओं से भरी हुई बड़ी बड़ी आंखों को देखकर शाहवीर एक पल को थम सा गया। हाथ दो, वो मजीद नीचे सरका तो बर्फ नीचे गिरती गिरती उसको फिसलाने का सबब बनने लगी। जबकि इंस्ट्रक्टर अपनी जान की परवाह करता आगे नहीं हुआ था, बल्कि उसके हाथ में शाहवीर का कोट था। और ये किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ही थी कि जो ही महक का हाथ शाहवीर के हाथ में आया, उसका कोट लकड़ी की गिरफ्त से आज़ाद हो गया और यकदम वजन नीचे की जानब गया। शाहवीर ने हर मुमकिन हद तक उसको ऊपर लाने की कोशिश की, मगर टूर इंस्ट्रक्टर बर्फ को अपने पाँव के नीचे से निकलता देखकर कोट छोड़ गया और शाहवीर तो पहले ही किनारे पर था। महक के साथ ही बर्फ से नीचे लटकता चला गया। शाहू, राहील और सागर उसकी जानब भागने लगे। कूल डाउन, हम कुछ करते हैं, इंतजामिया से बात होगी, ढलवान ज़्यादा गहराई की वजह से इंशाल्लाह उनको कुछ नहीं होगा। तो इंस्ट्रक्टर हाथ उठाता, उनको किसी भी अमल से रोकता, नीचे लड़कते हुए शाहवीर और महक को देखता है जो एक पल लगा था निगाहों से ओझल होकर दरख्तों और पौधों से नीचे किसी और जहां में जा पहुंचे थे। अब उनके पीछे छलांग लगाने का कोई फायदा नहीं था, बल्कि उनकी जान को भी खतरा था। आप लोग बचे नहीं हैं गाइस कि आपको इधर आने से मना किया जाए और आप इधर आए, इंस्ट्रक्टर गुस्से से चलाया। इंतजामिया उनको पहले बता चुकी थी कि इस मौसम में बर्फ बहुत नाजुक बनी हुई है, इसलिए किनारे से दूर होकर एंजॉय किया जाए, मगर महक अपनी बेदहानी में फासले का ध्यान नहीं रख पाई और इन असला बरदार आदमियों को देखने की कदर में किनारे तक पहुंच गई। मैं उसको मना भी किया था। प्रोफेसर शदीद परेशान होती, सर पर हाथ रख लेती हैं। सभी का परेशानी और खौफ से बुरा हाल था। कुछ ही मिनट में इंतजामिया उनके पास आती तमाम सूरत हाल पर गुस्सा कर रही थी और इंस्ट्रक्टर के सिवा बाकी सबको होटल भेज दिया गया था। ओह, महक ने रंग में भंग डाल दिया। अभी कल ही तो आए थे, हम ठीक से एंजॉय भी नहीं किया। निमरा के साथ वाली मुंह बनाकर बोली, यार वो बेचारा लड़कियों का रश एवं उसके साथ फंस गया। दूसरा ग्रुप सरगोशियां करने लगा, जबकि राहील और सागर का परेशानी से बुरा हाल था। सिग्नल नहीं है वरना घर तला दे देते। राहील ने मोबाइल को झटका। ओहो, वो भी परेशान होते। वैसे सच बताऊं, गलती हमारे इंस्ट्रक्टर की है, सागर ने सरगोशी की। ठीक कह रहे हो तुम। शाहवीर महक को खींच सकता था, मगर इंस्ट्रक्टर ने उसको डरते हुए छोड़ दिया और वो बैलेंस बरकरार नहीं रख सका। राहील ने हाँ में हाँ मिलाई, मगर वो कुछ बोलकर मुसीबत अपने गले नहीं डाल सकते थे, क्योंकि इन स्टूडेंट्स को बोलने का हक नहीं दिया गया था, बल्कि उनको शदीद किस्म की झाड़ फैलाई जा रही थी कि उनकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ। उफ मैम, मरियम तो हमारी जॉब के पीछे पड़ जाएंगी अगर उनके बेटे को कुछ हुआ। प्रोफेसर लब काटती दूसरी ओर बोली। हर कोई किसी न किसी सरगोशी में मसरूफ होटल की जानब बढ़ रहा था। मैं उसको भी हीरो बनने की पड़ी थी। दूसरी प्रोफेसर मुंह बनाकर बोली। सभी को अपनी अपनी टेंशन पड़ी हुई थी कि अब क्या होने वाला है, लेकिन एक बात तो तय थी कि शाहवीर और महक को ढूंढने तक तमाम बच्चे होटल में ही कैद रहने थे। लहलहाते हुए दरख्तों की ठंडी हवा से पैदा होने वाली सर्द लहर जिस्म के अंग अंग को चीरती हुई ठंड का एहसास दिलाने लगी, तो फटे हुए कपड़ों में इर्द गिर्द बिखरा हुआ पानी जाकर जिस्म पे निशान डालने लगा। ऐसे में पत्थरों के दरमियान ऊंधे मुंह लेटे हुए वजूद में हलचल पैदा हुई तो आंखें पट से खुल गईं। एक पल के लिए इर्द गिर्द आंखें घुमाते अपने जिंदा होने को महसूस किया, तो दूसरे पल अपने साथ बीते सानहे पर आंखें भर आईं। उसे एक एक करके तमाम मनाजर याद आने लगे जब वो सबसे अलग थलग तस्वीरें बना रही थी और दूर नीचे कुछ लोग गैर कानूनी काम करते हुए नजर आए थे, जिनको देखती वो लाशौरी तौर पर बर्फ किनारे आ गई थी और फिर उसका पांव फिसलना और शाहवीर को उसे बचाने के लिए तगदत करना। शाहवीर उसको यकदम शाहवीर का ख्याल आया तो आंसू एक पल को रुके और फिर वो आहिस्ता से अपना दुखता हुआ बदन संभालती उठने की कोशिश करने लगी। शाहवीर, वो इधर उधर निगाहें घुमाती अपना सर थाम लेती है और कुछ दूर ऊंधे मुंह गिरे शाहवीर को देखकर उसकी आंखों में यकदम चमक आई। शाहवीर, वो फौरी उसकी जाना भागी। ठंड से पूरा बदन कांप रहा था क्योंकि उसकी शाल, हिजाब और कोट को ऊपर कहीं गिर गए थे, जबकि कपड़े भी जगह जगह से फट गए थे जहां से खून रसता हुआ जिस्म को बेहद दर्द दे रहा था। शाहवीर उसको उस बाजू से सीधा करने लगी। ये एहसास कि वो उसकी खाता जान की बाजी लगाने से भी बाज नहीं आया था, वो सिर्फ वही था जिसने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी। महक के दिल में शाहवीर के लिए नरम गोशा बना गई थी। इस वक्त उसे याद था तो इतना कि इतने गैर लोगों में सिर्फ शाहवीर ही उसका अपना था। वो लाख उसका दुश्मन सही, लेकिन वो मुश्किल वक्त में उसका सहारा, उसकी फिक्र करता रहा था और अब उसका अंधे मुंह बेहोश पड़े होना उसकी जान निकालता जा रहा था। शाहवीर, उठो या अल्लाह मदद करें। वो रोती हुई उसका भारी भरकम वजूद वो मुश्किल सीधा करती है और उसके सर से बलबल बहता खून देखकर आंखें फट गईं। शायद उसका सर किसी नोकदार पत्थर से टकरा गया था। शाहवीर, उठो ना प्लीज़। उसके सीने पर हाथों का दबाव देती तो कभी उसका गाल थपथपाती है,
मगर वो हनोज होशो हवास की दुनिया से मबरा बेहोश था। पिघली हुई बर्फ का पानी इन दोनों को गीला किए मजीद ठंड का एहसास दिला रहा था। शाहवीर वो उस पर झुकी, साथ ही पास पानी हाथ में लेकर शाहवीर के मुंह पर छेंटे मारे और इन चोंडों की मैंने मुनथी थी कि शाहवीर के बदन में हलचल हुई। महक उसके होश में आता देखकर बेपनाह खुश होने लगी। अपने अकेले होने का एहसास पल में खौफ से बाहर निकला और थोड़ा करार आया कि वो अभी भी उसके साथ है। वो धीरे से आंखें खोलता है और खुद को किसी नरम आगोश में पाकर सारी सिचुएशन समझने की कोशिश करने लगा और उसे एक पल लगा था तमाम सूरत हाल से वाकिफ होने में। उसका सर महक की गोद में था और वो शदीद परेशानी से उसको देखती जा रही थी। इर्द गिर्द सख्त ठंडी चलती हुई या तेज़ हवाएं मौसम को मजीद खतरनाक असरात बख्श रही थी। हम कहाँ हैं? वो होश में आता अपना दुखता हुआ सर पकड़कर उठ बैठा। महक को भी अपनी पोजीशन का ख्याल आया तो शर्मिंदा सी पीछे होने लगी। दुपट्टा ना होने का शदीद गम लाहक हुआ। मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं? वो रोनी सूरत बनाती इर्द गिर्द देखती है। दूर दूर तक दरख्तों बर्फ और झाड़ियों के अलावा कुछ नजर ना आ रहा था। तुम्हें क्यों पता होगा? तुमने तो गिरना था और मुझे अपने साथ लेकर गिरना था। वो मुंह बिगाड़ कर उसको झाड़ पिलाता अपनी पसली पर हाथ रख गया जहाँ बेपनाह दर्द होता उसकी जान निकाल रहा था। तो किसने कहा था हीरो बनकर मेरे पीछे छलांग लगाने को? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता? गिर जाती ना। तो तुम्हें क्या, मैं गिरती या संभलती? वो कौन सा बर्दाश्त करने वालों में से थी, इसलिए मुंह बिगाड़ कर कहती। उसके साथ ही उठ खड़ी हुई। तुम्हारी वालदा साहबा ने मुझे जिम्मेदारी दी थी तुम्हारी। मैं उनको क्या कहता कि मेरे सामने उनकी बेटी जान से हाथ धो बैठी? वो उसकी जुबान दराजी पर शदीद खफा हुआ। हाँ तो कह देते। वो अपना बाजू मसलती इधर उधर देखती है। ठंड का एहसास जान निकाल रहा था तो दर्द की वजह से जिस्म गिरने के दर पे था। दूसरी जानब शाहवीर अपनी पसली को थामे पत्थर पर बैठता कराहने लगा। क्या हुआ? महक उसकी दर्द पर फौरी परेशान होती उसके पास हुई। कुछ नहीं हुआ। ये सोचो यहाँ से निकलना कैसे है? मेरा तो मोबाइल भी सागर के पास था। वो एक तरफ को लड़कता अपनी बंद होती आंखों को खोलने की कोशिश करने लगा क्योंकि एक तो ठंड का एहसास था तो दूसरी जानब सर और पसली की दर्द जान निकालने वाली थी। चोटें तो पूरे जिस्म पर आई थी मगर पसली वाली सबसे ज्यादा जानलेवा थी। मेरा पता नहीं कहाँ गिर गया, मेरे तो कपड़े भी फट गए हैं, मैं क्या करूँ? भीगी पलकों से उसको अपनी हालत बताने लगी तो शाहवीर कुछ नरम हुआ। उस बेचारी को भी अपनी गलती का काफी बड़ी सजा मिल चुकी थी। ऊपर से वो लड़का होकर इतनी तकलीफ महसूस कर रहा था। वो तो फिर नाजुक मिजाज लड़की थी, उसको ना जाने कहाँ कहाँ चोटें आई थी। ज्यादा जोर की चोट तो नहीं आई? वो पूछता। उसको ऊपर तले घूरता है। घुटने से फटी हुई जीन्स और बाजू से फटा कमीज उसके जिस्म पर लगी गहरी खराशों को जाहिर कर रहा था जबकि गर्म स्वेटर गीला होकर पानी टिपका रहा था। उसकी टोपी भी कहीं गिर गई थी जिस पर बना पर खुले बाल घटाओं के माने इर्द गिर्द फैल चुके थे। शाहवीर सफेद बर्फ में उसके स्याह बालों को देखकर खुद को पिघलता हुआ महसूस करता है। ऊपर से उसका हुस्न मजीद गुलाबी पड़ता लम्हों में जेर कर देने की सलाहियत रखता था। तुम ठीक हो? वो उसकी महवियत को तोड़ने के लिए इधर उधर नजरें घुमाकर फिर उसकी बसले की जानिब इशारा करती है जिसको शाहवीर मुसलसल थामे हुए था। तुम इससे जीन्स को बांधो। वो अपने हाथों से दस्ताने उतार कर उसको आपस में बांधता उसकी जानिब बढ़ाता है क्योंकि उसकी फटी जीन्स काफ़ी बुरी लग रही थी। लेकिन मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, मुझे मजीद तंग किया तो मैं तुम्हें यही कत्ल कर देना है। वो मुंह बिगाड़ कर बोलता उठने की कोशिश करने लगा ताकि यहाँ से निकला जाए और महक भी चुपचाप उसके दस्ताने पकड़कर अपने घुटने पर बांधने लगी। हमें निकलना होगा यहाँ से, ढलवान बहुत ज़्यादा है, इसलिए वापस जाते तो महीने लग जाएंगे। हमें कोई और रास्ता देखना होगा। वो इधर उधर देखता है मगर कहीं भी कोई ज़ीनब से नज़र नहीं आ रहा था। चलो। वो अपने ज़ख्म को पकड़ता रहा तो महक को तशवीश हुई। देखो तो सही क्या हुआ है यहाँ। वो आगे बढ़ी तो शाहवीर भी अपनी शर्ट बना हटाकर ज़ख्म की नोयत को देखता है। ओ माय गॉड! महक मुँह पर हाथ रख गई क्योंकि शाहवीर की पसली खून से भरी हुई थी। शायद कोई नोकदार चीज़ चीर फाड़ कर ज़ख्म कर गई थी और खून मुसलसल बह रहा था। हमें खून रोकना होगा शाहवीर क्योंकि जख्म बहुत गहरा है। वो लाशौरी तौर पर उसको सहारा देती जख्म को छोड़ने की कोशिश करती है क्योंकि शाहवीर की वाकई में दर्द से जान निकल रही थी। मैं यहाँ से निकलना होगा क्योंकि पानी की वजह से ठंड का एहसास पड़ रहा है, किसी साफ जगह पर जाना होगा। वो उसको समझाता पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा और महक भी उसका बाजू पकड़े साथ साथ बाहर निकलने लगी। बिगली हुई बर्फ, ऊंचे सफेद बर्फ से ढके हुए पहाड़, मुरझाए हुए सरसब्ज पौधे और दरख्त और झाड़ियाँ उनको अपनी जान बचाने के लिए तगद्दुद करते देखकर मुस्कुरा उठी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और नॉवल को लाजमी शेयर करें। आगे एक ट्विस्ट आने वाला है। प्लीज़।